How are you all? Hope so you all are fine. Very good. Yes, I am also fine. So you enjoy your online classes? Very good. Myself, Mrs. Madhura Pandit, I am going to teach you EVS subject. So tell me which period is going on? Say loudly. EVS period is going on. Which period is going on? EVS period is going on. Now tell me, in which class do you study? You are in class nursery. You are in class LKG. You are in class UKG. Yes, you are in class UKG. No, now you are in class 1. You are in class 1. Okay, dear student. So first we will do oral work. First we will read the chapter. In your previous lecture, I already explained first chapter. But today we will do reading work. Then we will do writing work. Right? So everyone, please take your book with you. I will give you 1 minute. Hurry up. Take out your book. Pencil also. Take out your EVS notebook also. Hurry up, hurry up. Done these things? Good. Now we will do prayer. Everyone please stand up. Join your hands, close your eyes and repeat after me. Om Astoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Slowly, slowly open your eyes. Yes. So, you are ready everyone? Hurry up. Our first chapter reads things around us. I already explained this chapter that day. Today also I explained things around us. Means things मतलब क्या? चीजें. Around us. Around मतलब हमारे आसपास. Us मतलब हमारे. Around मतलब आसपास. Things मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे आसपास होती है. Right? So take out your first chapter. Take out your book. This is your book. Nature Sir. Class 1. This is your contents. Chapter 1, things around us. Page number 5. Take out your page number 5. Chapter 1. You just repeat after me. Say loudly and repeat after me. We will read now. Start with me. Say loudly, okay? Chapter 1. Things around us. Things around us. Okay? Now see. In this chapter, इस chapter में क्या क्या है? Natural and man-made things. Natural मतलब जो पहले से बना हुआ है, जो भगवान ने बनाया हुआ है, उसे हम कहेंगे natural. और man-made things जो इंसानों ने बनाया है ना? How can we keep our environment clean? हम हमारा environment, हमारे आसपास का परिसर कैसे clean रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, इसमें दिया हुआ है. तो चलिए रीडिंग करते हैं. Start. Go to the first line. Put your finger here everyone. Say loudly. Repeat after me. God has created. मतलब बनाना. किसने बनाया है? भगवान ने. God has. किसने बनाया है? भगवान ने. Created. This. ये. Beautiful earth. ये जो पृथ्वी है ये कैसी है? बहुत सुंदर है, जिस पर हम लोग रहते हैं. हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में. पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम लोग. अर्थ मीन्स पृथ्वी.
पृथ्वी एक ग्रह है और उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। फॉर अस टू लिव, किस लिए बनाई है? हमें रहने के लिए। ही मेड एन एनवायरमेंट, ही मेड, ही मतलब कौन आया? भगवान, गॉड। ही मेड मतलब क्या? बनाना। मेड मतलब क्या? बनाया। ही मेड एन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब क्या? हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का परिसर, है ना। ऑन द अर्थ मतलब क्या? पृथ्वी पर बनाया है। ऑन द अर्थ सो दैट वी कैन सर्वाइव एंड ग्रो वेल, हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम अच्छे से जी पाए और हम लोग आगे आगे प्रगति कर पाए। इसलिए क्या है? भगवान ने क्या बनाया है? अर्थ को बनाया है और साथ साथ एनवायरमेंट को भी बनाया है। यहाँ तक हो गया आपका। टर्न योर पेज, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 यहाँ आए। अब इस पिक्चर को देखिए, सीधा पिक्चर। गॉड मेड द हिल्स, गॉड मेड द हिल्स, माउंटेन्स एंड द रिवर्स। भगवान ने क्या क्या बनाया है? क्या क्या बनाया है? पहाड़ी बनाई है बहुत ऊंची ऊंची, उसके बाद पर्वत बनाए हैं, रिवर्स मतलब नदियाँ, नदियाँ भी बनाई है ना। गॉड मेड द हिल्स, माउंटेन एंड द रिवर्स। डन। अब इसके बाद दूसरी पिक्चर देखिए, दिस पिक्चर। ही मेड द सन, सन मतलब सूरज। हमारे आसपास है क्या सूरज? नहीं। द सन, और बहुत सारे सूरज है क्या? नहीं, सूरज सिर्फ एक ही है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे उसके साथ? द सन। मून, मून में बहुत सारे हैं क्या? मून मीन्स क्या? चांद। चंद्रमा में बहुत सारे हैं? नहीं, सिर्फ एक ही है, मून। स्काई एंड स्टार्स, स्काई मतलब क्या? पूरा आसमान, और स्टार, स्टार मतलब क्या? सितारे, है ना। यहाँ तक हो गया। डन। नाउ नेक्स्ट। गॉड मेड एनिमल्स, किसने बनाए हैं? भगवान ने ही बनाए हैं। गॉड मेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब क्या? छोटे छोटे कीड़े। बर्ड्स मतलब क्या? पक्षी। एनिमल मीन्स क्या? जानवर। अराउंड अस, हमारे आसपास है वो भी। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, वो भी क्या है? हमारा एक हिस्सा है हमारे पर्यावरण का। कौन कौन है? एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। Who is a part of our environment? Animals, birds and insects also part of our environment. Then next, all these are natural things. All these are natural things. Natural things means क्या? जो God ने बनाई है, जो already बनी हुई है ना। Now next, human beings have also made many things. Human beings, इंसानों ने भी बहुत सारी चीजें बनाई है। They also form a part of our environment. वो भी क्या है? हमारे environment का एक हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, right? Like this, house. House किसने बनाया है? Man means इंसान ने। नेक्स्ट, मार्केट। मार्केट किसने बनाया है? आप जाते हैं ना मार्केट में, किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, जो चीजें मिलती है वो। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, राइट। वी शुड कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। हमें क्या करना है? हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, परिसर है, उसे हमेशा क्लीन रखना है। क्लीन मीन्स स्वच्छ, सुंदर रखना है। डर्टी एनवायरमेंट कैन मेक अस सिक।
डर्टी मतलब क्या? गंदा, खराब। खराब एनवायरनमेंट, खराब पर्यावरण अगर हमारे आसपास रहेगा तो उसके कारण क्या होंगे? हम लोग बीमार होंगे। इसलिए हमें कैसा रखना है? हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रखना है। यहाँ तक हो गया? डन। नाउ कंप्लीट दिस, गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? अब हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? यहाँ दिया हुआ है। ओके, नाउ वी विल रीड। सी द फर्स्ट पिक्चर। डू नॉट कट द ट्रीज, दे प्यूरिफाई द एयर। डू नॉट कट द ट्रीज, ट्रीज मीन्स क्या? पेड़। कट मतलब क्या? काटना, तोड़ना। हमें क्या करना है? पेड़ को नहीं काटना है। वो क्या करते हैं? वातावरण को क्या रखते हैं? एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं? शुद्ध रखते हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हमें देते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, सी दिस। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स एंड गार्बेज इन वाटर सोर्सेस। वाटर सोर्सेस मतलब क्या? पानी जहाँ पर जमा होता है। हम लोग पानी का यूज़ बहुत करते हैं, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए तो सबसे मेन यूज़ होता है, पानी पीने के लिए यूज़ होता है। अगर हम डस्टबिन जैसे कोई चीज़ें हैं, जैसे हम गार्बेज हैं, प्लास्टिक बैग से, पॉलीथीन से उठा के फेंक दिए, चॉकलेट के, बिस्किट के, चिप्स के रैपर हैं, उठा के अगर हम लोगों ने रिवर में फेंक दिए, नदी में फेंक दिए, तो उससे क्या होगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा और उससे हम लोग क्या होंगे? बीमार होंगे। डन। द वाटर बिकम्स अनफिट फॉर यूज। अनफिट मतलब जो हम यूज नहीं कर सकते, जिसको हम लोग जो यूज करते हैं पानी का, हम वो नहीं कर सकते। अनफिट मतलब असवच्छ, खराब। डू नॉट वेस्ट पेपर, मेनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर। डू नॉट वेस्ट पेपर, वेस्ट मतलब ऐसे फाड़ के फेंक दिया आपने, उसको आपको खराब नहीं करना है। वेस्ट मतलब खराब होता है। डू नॉट वेस्ट पेपर, मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनको काट कर उसके बुक्स बनाए जाते हैं, उसके पेजेस बनाए जाते हैं। अगर आपने एक एक पेज ऐसे खराब करके फेंक दिए तो सोचो कितने सारे ट्रीज काटने पड़ेंगे और पेजेस बनाने के लिए। इसलिए क्या करना है? ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन एंड कीप इट कवर्ड। थ्रो वेस्ट, थ्रो मतलब क्या? फेंकना। वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या? खराब, जो हमारा काम का नहीं है। इन द डस्टबिन, डस्टबिन जिसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं, कचरा रखते हैं। एंड कीप इट कवर्ड, और उसके ऊपर कवर ढककर रखना है, जिससे हमारा आसपास का वातावरण अशुद्ध ना हो। अगर कवर हमने उसको हटा दिया तो उसमें जो जर्म्स होंगे, जो कीटाणु होंगे, वो आसपास फैलेंगे और उससे हम बीमार हो जाएंगे। इट हेल्प्स टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। वो हमें क्या करता है? हेल्प मतलब क्या? मदद करना। एनवायरनमेंट हमारे आसपास का पर्यावरण जो है उसे क्लीन रखने के लिए। डन। नेक्स्ट, डू नॉट वॉश क्लोथ्स एंड बाथ एनिमल्स। डू नॉट वॉश क्लोथ्स, वॉश मतलब क्या? धोना। क्लोथ्स मतलब क्या? कपड़े। हमें कपड़े और एनिमल्स जो जानवर है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो भी है जिनको हम पालते हैं, उनको आपको क्या करना है? नदी में जाकर वॉश नहीं करना है। डन। इट मेक्स द वाटर डर्टी, उससे क्या होता है? जो डिटर्जेंट होता है उसमें बहुत हानिकारक चीज़ें होती हैं, जिससे हमारा जो पानी है वो खराब होता है। हम लोग पानी पीते हैं, हर बार वो प्यूरिफाई होकर आता है, बट कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह उसमें मिल जाते हैं, तो पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। द वाटर डर्टी, वो पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे नहीं करना है। चेक योर व्हीकल्स पोल्यूशन रेगुलरली। चेक योर व्हीकल, व्हीकल मतलब क्या? जैसे आपका वाहन है, उसका जो पोल्यूशन है, जैसे हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। बस, कार, जीप है उसके लिए, है ना?
तो उसका जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषित करती है हवा, उसे हमें रोकना है, उसे हमें सही जगह पे चेक करना है कि उसमें कितना भरा है, कितना लगेगा, क्या है। ये सारी चीज़ें हमें हमेशा यूज़ करना है, चेक करना है। पहले जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हमको टाइम टू टाइम चेक भी करना है। एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू स्मोक, मतलब क्या, जो धुआं निकलता है उससे क्या होगा, एयर को डर्टी हो जाएगा। जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इससे हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। जो हम सांस लेते हैं, अगर हवा दूषित हुई तो हम लोग हवा अगर खराब हुई तो क्या होगा, जो हम सांस लेते हैं उसमें हमें दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना है। यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 8, कीवर्ड्स। नेचुरल, थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन। नेचुरल मतलब क्या, जो भगवान ने बनाई है, जो इंसानों ने नहीं बनाई हुई चीज़ें हैं, उसे कहेंगे हम नेचुरल। एनवायरमेंट, थिंग्स अराउंड अस। एनवायरमेंट में क्या है, थिंग्स अराउंड अस, जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, थिंग्स अराउंड अस। डन। नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर अगेन. Say loudly. I already explained this chapter again. Now we will read. Start with me. Chapter 1. Things around us. Things around us. New words also explain. So now we will read this chapter. Number 1. Chapter number 1. Things around us. Put your finger here. Start. God has created this beautiful earth for us to live. Say loudly. God has created this beautiful earth for us to live. He made an environment on the earth so that we can survive and grow well. Turn your page. See this picture. God made the hills, mountains and the rivers. Then next, He made the sun, moon, sky and stars. Then go to the next. God made animals, birds and insects around us. They are also a part of our environment. All these are natural things. Done this? Next. Human beings have also made many things. They also form a part of our environment. Done this? Now next, we should keep our environment clean. Dirty environment can make us sick. Done? Now next, how we can protect our environment? First picture, put your finger here. Do not cut the trees. They purify the air. Do not cut the trees. They purify the air. Done this? Next. Do not throw plastic bags and garbage in water sources. Done? The water becomes unfit for use. Done this? Now next. Do not waste paper. Many trees are cut to make paper. Done? Now next. Throw waste in the dustbin and keep it covered. It helps to keep our environment clean.
Done? Now next, do not wash clothes and bath animals in the rivers. It makes the water dirty. Done this? Next, do not waste paper. Many trees are cut to make paper. Next, check your vehicle pollution regularly. Air becomes dirty due to smoke. Done? Next, remember, clean environment help us to stay healthy. Clean environment help us to stay healthy. क्लीन मतलब क्या? स्वच्छ सुंदर। अगर पर्यावरण वातावरण रहा तो हमें क्या रहेगा? हम लोग कैसे रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ओके, नाउ एवरीवन प्लीज टेक आउट योर नोटबुक. वी विल राइट न्यू वर्ड्स. हरी अप. टेक आउट योर नोटबुक. Write down the heading. Hurry up. Write down CW and place date. Hurry up, hurry up. NEWWORDS. New words. Write down the heading. New words. Divide in two parts. Hurry up. Now write here natural. 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 Done. Write fast. Hurry up. Next is made. 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 Next is THINGS. Things. Done. KEEP. Keep. Hurry up. CLEAN. Clean. Done. Now go to the next. Right here. EARTH. Earth. Same right. Right here. LIVE. Live. Next is environment. BUR
M-E-N-T. Done. Next is survive. S-U-R-V-I-V-E. Survive. Next is grow. G-R-O-W. Grow. Done this. Hurry up. Hurry up, everyone. Okay, everyone, some words we will write day after tomorrow. Okay, we will meet in our next video. So, bye bye. See you tomorrow. Take care of yourself. Please stay home, stay safe. Bye bye.